What is up YouTube? Welcome back to another vlog. Hope you guys are doing well. अभी सुबह के 7 बज चुके हैं and we are gonna get ready to go to the gym now क्योंकि 1 week from now मेरे फाइनल एग्जाम चालू होने वाले हैं और मुझे I need time to concentrate all throughout the day क्योंकि वो ज़्यादा प्रायोरिटी है अभी. तो I'm gonna be working out in the morning for the next whole week and then take a break and then go every alternate day during my exams. So it's going to be nice because it's very refreshing in the morning और मैंने बहुत टाइम से मैंने सुबह सुबह ट्रेन नहीं किया है तो it's going to be quite nice too क्योंकि मैं यूजली सिर्फ संडेज़ को मॉर्निंग में जाता हूँ और इसलिए लाइक ऑन अ वीक डे गोइंग इन द मॉर्निंग होपफुली क्राउड भी ज़्यादा है नहीं. और हम लोग आज का व्लॉग सौरभ के साथ ट्रेन करने वाले हैं क्योंकि सौरभ के साथ आई डोंट थिंक आई हैव ट्रेन्ड विद हिम सिंस द लास्ट वीडियो दैट वी शॉट टुगेदर और उसका अभी ICN ख़त्म हुआ है तो ही इज़ गोना बी लुकिंग रियली गुड. So it's going to be really exciting working out with him. I think he wants to train chest and back today. A lot of you guys know that on a calorie deficit you guys have a lot of mental fatigue. तो इसलिए मैं अभी मेरे कैलोरीज थोड़ा सरप्लस में खाने वाला हूँ. I'm going to eat around I think around 2200 calories now which would be around a 400 surplus क्योंकि I need to have more energy throughout the day to study and to be mentally aware and alert. So yeah, it's going to be beneficial for me during my exams. It's only a 1 week का scene तो उसके बाद मुझे I'll feel better also and it'll be a little bit of a switch to from going from 1700 calories to 2200 calories for a bit. जिम जाने से पहले मैं मेरा क्रिएटिन लूँगा और फिर I'm going to see you guys at the gym. By the way guys, I was really excited to show you guys what Nutrabia has come up with. This is CreaPeak. This is their new creatine and it is sourced from Germany और यान फ्लेवर्ड है. I've been taking this for the past 2 weeks और जो रिजल्ट आ रहा है मुझे like I'm already feeling a difference in strength and I'm already feeling a difference in like pushing myself. इससे बहुत अच्छा absorption भी मिलता है और ये peak quality का भी है और peak experience मिलेगा आपको, hence the name CreaPeak. So you guys should definitely check it out and if you guys want to try it out, you guys could use my code GautamLifts for an additional discount. हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी? So we're doing chest and back. नहीं, हिंदी में बात कर. मैंने हिंदी में स्विच किया है चैनल. ये तो रिस्पेक्ट कर मेरे चैनल के लिए प्लीज. So आज हम लोग chest और back कर रहे हैं and this is as usual मेरा workout plan and we're starting off with chest और हम लोग usually क्या करते हैं chest back ऐसे वेरिएशन रखते हैं. पहले chest खत्म करके फिर back चालू नहीं करते ताकि दोनों को रेस्ट भी मिले और दोनों को एग्जॉस्शन ज़्यादा होता नहीं है उससे तो अच्छा है. Exactly. So we started with अभी हम लोग ये चेस्ट के साथ चालू किया है तो we're going to do the one incline this thing one step incline bench press and with the dumbbells and then उसके बाद हम लोग lat pull down. तो हम लोग ने अभी वार्म अप खत्म कर लिया है. अभी हमारा वो पहला सेट है. मैं आपको सिर्फ लास्ट सेट दिखाने वाला हूँ, हम दोनों का लास्ट सेट, बिकॉज एवरीबडी इज कंप्लेनिंग अबाउट मी मेकिंग वीडियोस फॉर टू लॉन्ग. तो लास्ट वीक मेरा टॉप सेट 40 kgs था. इस वीक आई एम गोइंग टू डू 45 kgs सिंस आई एम ऑन अ सरप्लस और आसान भी होगा. एंड इवन इफ आई वाजंट ऑन अ सरप्लस लास्ट वीक आई हिट 45 एंड देन आई हिट 50 ऑल्सो, अगर आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम पे नहीं देखा होगा तो. सो या इट्स गोना बी गुड, इट्स गोना बी नाइस. उसका सौरभ का टॉप सेट भी 45 kgs है तो मैं भी 45 kgs ही कर रहा हूँ. तो अभी हमारा लास्ट सेट है. मेरे पहले के 2 सेट में मुझे आई थिंक इन द फर्स्ट सेट आई गॉट 10 reps, इन द सेकेंड सेट आई गॉट 8 reps. 8 reps. तो मैं लास्ट सेट के लिए 45 kgs के साथ I'm gonna try getting around 7 to 8 reps hopefully. 8 with I my might help. need a little assistance but yeah. और सौरभ तू कितना कर रहा है अभी? 37.5. सौरभ 37.5 कर रहा है अभी क्योंकि वो बहुत डिप्लीटेड है उसके शो के बाद. तो अभी he'll take a little while to get back. But yeah. So last set now. ठीक है. One more. Easy, slow, nice and slow. Nice set, bro. Two. 3. चल. एक और. चल जाएगा. I'm here. Now press. Easy. Control. Nice. That felt good, bro. That was a good set.
और है तो अभी हम बैक कर रहे हैं। यूजुअली मैं लैट पुल डाउन करता हूँ विद द लैट पुल डाउन मशीन, पर अभी सौरभ ने मुझे ये करने बोला है। मैग्रेव लैट पुल आई डाउन। स्ट्रगल अ लॉट विथ माई बैक माइंड मसल कनेक्शन, क्योंकि मेरे फोर आर्म्स बहुत डोमिनेंट है और वो टेक ओवर करते हैं। सो ही हैज सजेस्टेड मी टू डू दिस नाउ। तो मैं भी ये करने वाला है। हम लोग इसके 3 सेट करने वाले हैं, और ये मेरा पहले बार है करना। ये मेरा पहले बार है, पहली बार। ये मेरी पहली बार कर रहा हूँ ज़िंदगी में, तो मैं थोड़ा लाइट वेट ही जाने वाला हूँ होपफुली, और आई ट्राई मैचिंग योर वेट हाँ होपफुली। सो लेट्स सी, 3 सेट करना है टू फुल फेलियर। और है तो हमारे भी बैक का 3 सेट हो गया है, और सौरभ ने 3 सेट किए, मैंने सिर्फ 2 सेट किए क्योंकि मुझे उल्टी जैसे हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ दोज डेज वेयर आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई कांट लिफ्ट, क्योंकि आई हैव नॉट गॉट एडिक्वेट रेस्ट एंड येस्टरडे आई स्किप्ड डिनर टू, सो आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो अभी मेरे से इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है, तो फिर मैं अभी सिर्फ 2 सेट करने वाला हूँ आगे के सारे एक्सरसाइजेस के लिए, एंड देन आई गो होम एंड आई रेस्ट एंड होपफुली ईट वेल नाउ। सो प्लस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प मी ओवर द नेक्स्ट 1 वीक। तो मैं अभी सिर्फ 2 सेट करने वाला हूँ। तो यूजुअली मैं ये इसका वेरिएशन यहाँ से करता हूँ, और सौरभ बोल रहा है कि आज यहाँ से करना है क्योंकि वी आर गोइंग टू बेसिकली पुश इट डाउनवर्ड। तो लेट्स सी इफ दिस इज़ हेल्पफुल। So yes, welcome back to my channel. So basically अभी हम लोग कर रहे हैं केबल बेंच, अरे इसका नाम इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं ना, बेंच सपोर्टेड केबल चेस्ट प्रेस, इतना नाम बड़ा सेंस नहीं बनता है। बेसिकली चेस्ट प्रेस कर रहे हैं केबल के साथ, इसलिए क्योंकि मैं इसको डायरेक्शन में ले जा सकता हूँ। लेट्स से इफ़ आई वांट टू गेट अ बेटर स्ट्रेच या फिर मोर स्ट्रेच, तो मैं पीछे ले जा सकता हूँ। द सिनेरियो इज़ नॉट द सेम विथ चेस्ट प्रेस मशीन। सो वो है। बाकी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कीप इन माइंड इसकी, जब तुम पीछे जा रहे हो मेक श्योर कि वो मूवमेंट तुम्हारे कंट्रोल में है, वो जो माइंड मसल कनेक्शन है मसल के साथ मेंटेन है। अगर वो छूटा तो वहीं पे इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेक श्योर यू कीप थिंग्स इन माइंड, ये वाली चीज़ें, क्योंकि वर्कआउट तुमको ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बनाता है, पर तुमने जहाँ पे स्लैक किया वहाँ पे इंजरी होकर तुम और कमज़ोर हो सकते हो। सो वर्क आउट हार्ड बट स्मार्टली। हाँ चल 1 2 3। चेस्ट आउट चेस्ट आउट चेस्ट आउट नहीं है, आप पीछे नाउ मोमेंटम ले स्क्वीज करते टाइम। नाइस, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कंट्रोल, इजी, 2 मोर, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, एक और चल, फोकस, आ रहा, 2 आ रहे, सेम चल, सेम इंटेंसिटी। एक और गिव मी 1 मोर। नाउ कंट्रोल, होल्ड, 5 4 3 2 1। तो अभी सौरभ ये वाले रोज़ कर रहा है। वाइल ही डज दिस रोज़ मैं यहाँ पे रेस्ट करने वाला हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू डू द सिंगल आर्म बेंच सपोर्टेड रोज़ फॉर द बैक, क्योंकि ये एक्सरसाइज में बहुत दबाव आता है चेस्ट के ऊपर, और राइट नाउ आई एम फीलिंग वेरी लाइक उल्टी जैसे आ रहा है मुझे। तो बिकॉज ऑफ द अनईजीनेस आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक अ रेस्ट टुडे एंड नॉट डू दिस, एंड आई एम गोइंग टू डू सिंगल आर्म बेंच सपोर्टेड रोज़ आफ्टर दिस। एग्ज़ाम के स्ट्रेस की वजह से और बहुत सारी चीज़ों की वजह से
मेरे को नींद नहीं आ रही है एंड लाइक यू नो इट्स अफेक्टिंग माई स्लीप. दैट्स वन ऑफ द मेन रीजंस कि मैं एक सरप्लस पे जा रहा हूँ ताकि मेरा यू नो एवरीथिंग एल्स मेंटली आई फील मच बेटर एंड माई स्लीप गेट्स बेटर एंड आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडिंग. अभी जिम प्रायोरिटी नहीं है, स्टडिंग इज़ द प्रायोरिटी राइट नाउ. अगर फॉर्म में गड़बड़ी हुई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा. सौरभ को लगता है कि वो मुझे धराता है और दैट्स नॉट ट्रू. सौरभ के 3 सेट हो गए चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोज के. मैंने वो नहीं किया क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग टू वेल एंड इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज. तो नाउ वी आर डूइंग सिंगल आर्म बेंच सपोर्टेड रोज एंड या 3 सेट इसके एंड देन चेस्ट फ्लाइज ना इसके बाद. हाँ, चेस्ट फ्लाइज एंड देन वी आर डन फॉर टुडे. Easy. स्टिल हाथ ऊपर आगे रख. इजी, चल. पुल कर एक्सप्लोसिव पुल. नाइस. पुल स्लो. देख, एक तो ग्रिप टाइट रख. जितनी ग्रिप टाइट रखेगा ना उतना तेरा कंट्रोल जमेगा. दूसरा, ऐसे छोड़ मत. तो क्या करूँ मैं अभी 10% के बाद क्या करूँ? So stick somewhere between 12 to 15. 15 तो is the max upper limit. बस जाना भी नहीं. तो I don't want to go also. Exactly. I think 13. I think come back to this. To an extent where abs are visible is a good part. उसके बाद तुम गए ऊपर, it's not worth it because उसके बाद you start feeling very lethargic. How are you? All good. How are you? All great. क्या होना चाहिए? हाँ. So उसके बाद एक तो यू डोंट फील ओवरऑल गुड कि तुमको इट्स ओवरऑल वेट ज़्यादा है तुम्हारी बॉडी. हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू बी वेरी एक्टिव? लाइक अभी तूने जब कट किया यू फेल द डिफरेंस बल्क और कट में कि एक्टिव कितना एक्टिव फील होता है कट में. यू डोंट योर बॉडी डजंट वांट दैट मच अमाउंट ऑफ रेस्ट क्योंकि उतना है नहीं खाना पचाने को. तो इट्स ओवरऑल तेरे लिए बेनिफिशियल. सेम अगर वजन हम लोग जब अगर मसल पुट ऑन करने की बात करते हैं ना तो इट्स द स्ट्रेस जो तुम मसल टियर कर रहे हो. नॉट एग्जैक्टली टियर बट जितना भी जो रेजिस्टेंस दे रहे हो उसके बाद वो ओवरकम करते रहता है. एंड व्हाट यू हैव टू कीप ऑन मास्टरिंग इज कंट्रोल हो गया. फिर कितना रेंज ऑफ मोशन एक्सप्लोर कर पा रहे हो गिवन द फैक्ट कि वो एक्टिव रेंज. मेरा वही प्रायोरिटी है कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी. मुझे पता है कि स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा पुश नहीं कर सकता. तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जो भी नेगेटिव्स है, जो भी यू नो little things and make things better. Exactly. I'm just working on that now. So I know that in the long term that's what's going to help me the most. अभी से बैक में कितने सारे ट्रिक्स बताए मैंने. हाँ. अगर उन ट्रिक्स को मास्टर करने में टाइम लगेगा और जब तक तुम मास्टर करेगा यू विल नोटिस अ विजिबल चेंज इन योर बॉडी. वो जो मसल पुट ऑन होगा कि तेरे को पता चल रहा है कि तू तेरे मसल के साथ कितना अच्छा कनेक्ट कर पा रहा है. वो चीज़ें मैटर करेगी. और ये चीज़ें जब तू हैवी लिफ्ट करता है तो उतना नहीं हो पाएगा. वो नहीं होता है क्योंकि फिर वो माइंड मसल कनेक्शन एक साइड पे होता है, पुश करना एक साइड पे होता है. लाइक कंप्लीटिंग द रेप गोज टू अ प्रायोरिटी देन व्हिच इज नॉट एग्जैक्टली as long as you're pushing your limits ना अच्छा खासा you will put on muscle. Yeah. For obvious reasons. उतना ज़्यादा नहीं सोचने वाला कि I have to bulk क्योंकि bulking इतना एडवाइजेबल नहीं है. वो ज़्यादा खाने हो गए, तुमको ज़बरदस्ती खाना भी होता है, तुमको खाने का मन नहीं है फिर भी तुम खा रहे हो. सो हाउ इज़ दैट एडवाइजेबल? बॉडी को जितना चाहिए उतना ही दो. मेरा क्या प्लान है कि अभी 10% के बाद आई विल गो डाउन टू 10% और गो लोअर और फिर उसके बाद वापस इस पे आओ क्योंकि ये बॉडी वेट पे आई थिंक 63 kgs पे पुश करना हो रहा है मेरे से. 63-64 kgs के बीच में आ जाऊँ. 66 kgs आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. आई कैन बेंच 140 kgs एंड ऑल. 66 kgs इज वेरी गुड. एब्स इज विजिबल, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. तो अभी प्लान वही है, देखते हैं. सो अभी विद टाइम अगर तू 66 पे स्टिक करता है ठीक है अच्छे से
और अगर तो अच्छा खा रहा है ना तो तेरी बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट करेगी, उस लाइफस्टाइल को अडाप्ट करेगी, एंड उसी के साथ तेरा मेटाबॉलिज्म पीएमआर जो है वो भी स्ट्रांग होगा। तो एक टाइप पर जो तेरी मेंटेनेंस कैलोरीज होती थी वो सॉर्ट ऑफ तेरा डेफिसिट में बन सकता है, लाइक स्लाइट डेफिसिट। वही अभी नेक्स्ट एग्जाम्स होने के बाद वो पूरा फोकस इस पे ही रहेगा कि सारे वीक पॉइंट्स बढ़ाने हैं हाँ इन जनरल, और सारे फॉर्म सब कुछ एक टाइम पे मास्टर ही करना है सब। वो तो कुछ जब देखते तब भी पता चलता नहीं हाँ। कि भाई यहाँ पे थोड़ा और ट्विक कर सकता है। दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि हाँ अभी मैं इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ धीरे धीरे। मैं वेट अभी ड्रॉप करूँगा। नहीं क्यों, जो वेट जो भी जहाँ पे भी मेरा आर्म्स टेक ओवर होता है ना उसमें मेरे को वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हेवी रहता है ना तो मैं आर्म्स टेक ओवर लाइक ओ फक ओके यू नो व्हाट माय लैट्स नॉट बीइंग एबल टू डू द जॉब सो आई विल डू द जॉब। एग्जैक्टली वो फॉर्म वहाँ पे आ जाता है कि कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे फॉर्म के साथ गड़बड़ी है कि ये टेक ओवर कर रहा है। जैसे अभी चेस्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, अगर मेरा पोस्चर वगैरह सब सही है, ये जो पुशिंग पॉइंट है मैं अगर वहाँ से पुश कर रहा हूँ तो इवेंचुअली वो चेस्ट पे ही आएगा। बट कहीं पे अगर मैंने कर्व कर दिया चेस्ट को और मैं सिर्फ पुश करने के लिए कर रहा हूँ, वेट को कैसे भी करके ऊपर ले जाना, दैट्स नॉट द गोल। वो पावर लिफ्टिंग वाला चीज तो वो फिर है कि तेरा डेल्ट शैलो डोमिनेट करेगा या फिर ट्राइसेप्स डोमिनेट करेगा। तो ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी मैं एक बंदे को बता रहा था वहाँ पे, उसमें मशीन क्लोज ग्रिप करवा रहा था, हाँ। बट वो पुशिंग पॉइंट वगैरह अच्छे सब करवाया है। एक बंदा के मुझे ट्राइसेप्स मारते होता है, भाई नहीं ऐसा नहीं होता, वो छोटी मोटी ट्वीक्स है ना, ये समझना पड़ेगा तुम्हें कि भाई कहाँ पे वो exactly थोड़ा आ रहा है स्ट्रेस। वो समझ में तो आया है अभी, बट देन आई नीड टू स्टिल मॉडिफाई इट अ लिटिल। Now, rest, easy, partials. प्यारा, चल, हाँ, two more. Get it? एक और, easy boy. Now, चल, आजा. कमजोर. और तो हमारी सारी एक्सरसाइजेज अभी हो गए, तो अभी एज अ फिनिशर फॉर बैक वी गोना डू पुल अप्स एंड फॉर चेस्ट वी गोना डू पुश अप्स। ठीक है, Deficit push-ups. लाइक दिस। नहीं. आई एम बेटर एट अंडर आर्म। बाइसेप्स नहीं मारने ब्रो. स्लो. नाइस. ट्राई कर. स्लो. ब्रीदिंग. This naughty boy over there was using his leg to push himself up for the last That two was reps. just the last Please rep. don't lie. That was just That one was a rep. very sly See move, the video Mr. properly. Saurabh. That was a very, very sly move. अरे नहीं I think you should be ashamed of yourself अरे for using leg drive Nahi. for pull-ups. Oh my god, I wish I would have recorded that. Horrible. Can you do 30? Can I do 30? That's a good question. I've never tried 30. नहीं होगा. क्यों? मैं बोल रहा हूँ. नहीं होगा. कंट्रोल मैं बताऊंगा ना तेरे को. देखते हैं. चल. I challenge you to do 50. हाँ? 50. 30. 30 देखते हैं. I know. Focus. Breathe.
लास्ट थ्री चल चल नीचे जा लास्ट थ्री चल easy now that's what we call true failure How many? how would I know you are counting Count. अरे Easy. Nice. Fifth place याद रख. ICN fifth place. चल कर. चल कितना? How bad do you want it, bro? चल. Easy. Keep going. टेक्निकली वो चीटिंग है. चीटिंग काउंट करने वाला वो कि वो पीछे जा रहा है. आई डू नॉट डू दैट बट इट्स इजी. चल कीप गोइंग. how many I do I think 25 or probably more. less probably I'm not sure. इतना ज़्यादा नहीं क्या It was good. It was a good amount of reps. छी भाई मुश्किल 3 2 1 और तो आज का व्लॉग ख़त्म हो गया. I think it was a good, pretty, it is a great really good workout actually, to be honest. And it's been a while since I've come at like morning 10 time, and it was a really good workout. So I think मैं कल से morning में आने वाला हूँ और yeah, I think we'll work out again on I think day after tomorrow or something. ठीक है? चलेगा? चलेगा Good scene then. चल then, I will see you guys at home. What's up guys, so I've come home now. I just had a bath and I'm feeling a little better. Today wasn't exactly how I expected it to be performance wise, but that is also because I did not sleep well. So kafi, like I was having a lot of fatigue during the workout. But it's always a pleasure working out with Saurabh. Like you guys saw, there's always something that I learn from him. And every session is like a learning curve for me. So yeah, it's really nice and we are going to be working out with him in the morning now every day. क्योंकि before my exams, at least till my exams get over, I'll be going in the morning and then after that अगर मुझे पसंद आया वो timing then I'll be going in the morning every day in general. क्योंकि पूरा दिन बाकी का productive रहना मुझे पसंद आता है. I don't like lazing around after the gym, so it's quite nice. आज मुझे ये vlog में आपको दिखाना था कि मैं how I study for my exam and all, पर I think the vlog has already gone too long. I'll make a video tomorrow. I'm filming tomorrow again, so I'll make a video again. एंड आई कैन शो यू गाइज व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज अभी वैसे भी मैंने मार्किंग किया नहीं है. अभी के लिए मैंने बस सिर्फ मार्क किया है ये. आई एम गोइंग टू शो यू गाइज व्हाट आई डू विद द क्वेश्चन पेपर्स. आई जस्ट गॉट दिस येस्टरडे. आई गॉट अराउंड 30-35 क्वेश्चन पेपर्स. तो इसके हिसाब से हाउ आई स्ट्रैटेजाइज माई एंटायर स्टडिंग प्लान फॉर द एग्जाम्स. आई कैन शो यू गाइज नेक्स्ट व्लॉग, सो स्टिक अराउंड फॉर दैट. तो इस बार मेरे पेपर्स 5th ईयर में वी हैव 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वो मूट है एंड द रेस्ट ऑफ देम वी हैव रिटन. तो कल मूट का एक लास्ट वाइवा है और फिर उसके बाद वी हैव 1 वीक ट्यूसडे टू ट्यूसडे. सो 22nd इट स्टार्ट्स एंड 29th इट गेट्स ओवर. तो 22nd से 29th तक एवरी ऑल्टरनेट डे आई हैव अ पेपर एंड फॉर द लास्ट पेपर आई थिंक आई हैव 2 days. दैट इज द ऑप्शनल पेपर, इसलिए 2 दिन दिया है उसके लिए. एंड फॉर द I think the second paper is what I'm doing right now. वो administration law है. So once I'm done with the second paper, I know that I can do the first paper properly. तो मुझे वो headache नहीं रहेगा कि I need to go back home and you need to have a sleepless night or something like that. So I'm going to do the second paper का preparation right now and then 4 days before the exam. I think tomorrow or day after tomorrow I'm going to start studying for the first paper. फर्स्ट पेपर इज क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ हमारे लिए इस बार काफ़ी डिफिकल्ट है क्योंकि लॉ पूरा चेंज हो गया है. ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है पर वी डोंट नो व्हाट टू यूज़ बिकॉज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आई डोंट नो इफ इट विल बी एप्लीकेबल दिस टाइम. तो मुझे थोड़ा डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करना पड़ेगा उसके लिए. पर आई एम काइंड एक्साइटेड फॉर इट बिकॉज अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल आई एन्जॉय क्रिमिनल लॉ अ लॉट.
सारे सब्जेक्ट में से मुझे क्रिमिनल लॉ सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. तो आई डोंट माइंड पुटिंग इन द आवर्स एंड एक्चुअली स्टार्टिंग फॉर इट बिकॉज इट्स क्वाइट फन फॉर मी. मुझे आज हेयर कट के लिए भी जाना है. आप लोग ने जिम में देखा होगा कि इट्स गॉन ऑल हे वायर. तो मुझे हेयर कट के लिए भी जाना है आज. एंड वंस आई फिनिश दैट आई थिंक आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर 5 o'clock. सो आई थिंक आई हैव अनदर 2 hours फॉर इट. तो मैं वो ख़त्म कर लूँगा एंड देन आई एम जस्ट गोना सिट टू स्टडी ऑल डे. एंड देन आई थिंक आई हैव अनदर फुटबॉल गेम एट 9 o'clock. तो इट्स गोना बी क्वाइट अ बिजी डे. आई थिंक आई एम गोना एंड द व्लॉग हियर ओनली टुडे क्योंकि मुझे और कॉन्सेंट्रेट करना है. एंड देन आई डोंट वांट टू लेट गो. आई वांट टू स्टार्ट एडिटिंग दिस वन. तो मैं ये आज के लिए इतना ही बात करने वाला हूँ. एंड होप यू गाइज एन्जॉय द वीडियो. इफ़ यू डिड, please like and subscribe. It helps me a lot. If you guys want to support me, you guys could use my code GautamLifts for the new NutraBase CreaPeak. It's the creatine that they've just come up with, like I mentioned before. And it has actually helped me. I've been taking it for a while now. And you guys saw my story the other day on a cut. I'm being able to push 50 kgs. So it is clearly helping. Hope you guys enjoy the video and see you guys in the next one.